السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے تو دیکھا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ قرآن مقدس کی جو سب سے پہلے آیت کریمہ نازل ہوئی وہ ہے اقرأ، یعنی رب کائنات ارشاد فرماتا ہے پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی اس دنیا کی سب سے بڑی کتاب قرآن مقدس ہے، جس کی پہلے آیت کریمہ نازل ہوئی اقرأ پڑھیے، یعنی اس اقرأ میں پڑھیے کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ کیونکہ ہم جس مذہب اسلام کو مانتے ہیں اور جس اسلام کو فالو کرتے ہیں، یہ اسلام حکمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر ہمیں نہ سمجھ میں آئے غلط بات ہے۔ اسلام کا ایک کنسپٹ، ہر ایک چیز ہے، اگر ہم اس پر غور کریں تو ہر جگہ سے ہمیں فائدہ نظر آئے گا۔ اگر اس پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ذرا دیکھیں کہ قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ سب سے پہلے نازل ہوئی اقرأ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ آج بڑا افسوس ہی ہوتا ہے قوم مسلم کو دیکھ کر کہ جن کے پاس سب سے بڑی کتاب دنیا کی ہے، وہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش تک نہیں ہے۔ بہت ساری کتابیں دنیا میں ہیں، لکھنے والے سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کا یہ چیلنج ہے کہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش تک نہیں کی جا سکتی۔ لیکن آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور اسلام کا وفادار بھی کہتے ہیں، لیکن جب اسلام سے وفاداری کی بات آتی ہے تو کوسوں دور نظر آتے ہیں حضرت۔ اب آپ سوچیں گے کیسے؟ تو سب سے پہلے یہی جان لیجیے قرآن نے کہا سب سے پہلے آیت کریمہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ کیا ہم اور آپ پڑھتے ہیں؟ ہمیں جس چیز کے لیے تنبیہ کی گئی، بتایا گیا کہ پڑھیے، یعنی ہماری شروعات جہاں سے ہوئی اسے تو ہم نے چھوڑ دیا اور غیر قوموں نے اس کو اپنا کر وہ کامیابی کے منزل پر ہے۔ آپ اسی ہندوستان میں دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بڑی پوزیشن پر آپ کو نظر آئیں گے، شاید کہ 100% میں سے 5% کہیں سے آپ کو مسلمان نظر آئے، 95% آپ غیر قوم کو دیکھیں گے، کیونکہ ہم نے بس خالی جانا ہے اور انہوں نے جان کر اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ قلم کی طاقت بڑی مضبوط طاقت ہوتی ہے، لیکن آج ہمارا ذہن یہ بن چکا ہے کہ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہو، زمین و جائیداد ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، پھر ہم طاقتور ہیں۔ لیکن یقین جانیے کہ قلم کی طاقت کے آگے ساری دولت گھٹنا ٹیک دے گی۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی ایسے مسائل آتے ہیں، آپ کے پاس کتنے بھی مال و دولت ہو، کتنا زمینیں جائیداد ہو، لیکن جب تک اگلا آدمی جس کے پاس پاور قلم کی طاقت ہے، اگر وہ اپنے قلم کو نہ چلائے، ہمارا سارا مال و دولت بیکار ہے۔ اس لیے مال و دولت بھی کمائیے، بری بات نہیں ہے، لیکن جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ قلم کی طاقت ہے۔ پڑھیے اور اپنے قوم کے لیے ایک اچھا رہنما بنیے تاکہ لوگوں کو آپ فائدہ پہنچا سکیں۔ اور
आपसे यही कहूंगा कि जिस तरीके से हिंदुस्तान को आजाद करने में 15 अगस्त को हमारे उलमा और तमाम मज़ाहिब के लोगों ने साथ दिया, हमें इनके कुर्बानियों की कदर करनी चाहिए। लेकिन आज हम तालीम से इतने दूर हैं कि लोग हमको ये इल्जाम लगाते हैं कि इनका हिंदुस्तान में कुछ नहीं है। मुझे तो अफसोस होता है सुनकर, हमें अपनी कुर्बानी, अपने आजादी की दलील देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप हिंदुस्तान के कोने कोने में चक्कर लगा के देख ले, ताजमहल किसका दिया हुआ है, कुतुब मीनार किसका दिया हुआ है, जाइए दिल्ली इंडिया गेट में देखिए किसके नाम ज्यादा लिखे हुए हैं। हमें दलील देने की जरूरत नहीं, बल्कि दलील तुम दो कि तुमने कहा आजादी में हिस्सा लिया है। तुम्हारे हिंदुस्तान में कौन सी निशानियां हैं जिससे आज हिंदुस्तान बुलंद वाला है, और हिंदुस्तान के बाहर भी मुल्क हिंदुस्तान के लोग तारीफ करते हैं और यहाँ के जो अजाइब है उनकी ज़ियारत, उनकी देखने के लिए आते हैं। तुम्हारे पास तो इसी चीज है, अरे तुम हमसे दलील मांगते हो। हमारे आबा उस्ताद ने अपने खून से इसको सींचा है, फांसी के फंदे पर लटक करके आवाम को पैगाम दिया है कि हमारी जान भी जा सकती है, लेकिन इस हिंदुस्तान की इज्जत पर हम आज नहीं आने देंगे। और उन्होंने जो वादा किया था उस वादे पर अमल भी किया, लोगों को करके दिखाया भी। इसी तरीके से हमें अपने आबा और अजदाद के नक्शे कदम पर चलना होगा। और यही जानिए कि अगर आप इस दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं और आप एक मजबूत शख्सियत, एक मजबूत इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको अपने हाथों में कलम लेना होगा। कलम की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। आप तालिब इल्म हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तालीम सीखने के दौरान आपके सामने बहुत सारे वसाइल वाला, कभी कभी ज़हन में आता होगा कि पढ़ लिख के क्या मिलेगा। बहुत से लोग पढ़ के घूम रहे हैं। आप एहसास कदरी के शिकार ना हो, बल्कि मेहनत कीजिए। और कामयाबी जो होती है वो वक्त मांगती है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। एक बात आपको और बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग एहसास कदरी के शिकार होते हैं कि जो किस्मत में लिखा होगा वो होगा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि किस्मत और मेहनत, इन दोनों का अगर मुकाबला किया जाए तो किस्मत का भरोसा आप 1% कीजिए, हो सकता हो या ना हो। लेकिन अगर हमने मेहनत की है तो आप 99% ये समझिए इंशाल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। बस शर्त यह है कि आपको मेहनत करनी है। और हम भी आपके साथ अपना वक्त गुजारते हैं इसलिए कि आप कौम के एक अच्छा रहनुमा बनकर निकले, एक अच्छा स्कॉलर बनकर निकले जो कौम को अच्छाइयों की तरफ लेकर जाए। इसलिए आप अपने वक्त की अहमियत को समझें और वक्त की अहमियत की कदर करें, वरना बेकदर हो जाएंगे। जिसने भी वक्त की कदर नहीं की वो बेकदर ही हो गया है। हमें और आपको दीनी तालीम भी हासिल करनी है और दुनियावी भी हासिल करनी है। और हमेशा याद रखना है कि हमारे आबा अजदाद ने जो पैगाम दिया है, जो हुक्म दिया है, उस पर अमल करना है। रही बात हिंदुस्तान की आजादी की कि इनमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, आप लोग तो कई सालों से सुनते आ रहे हैं, वही पुरानी बात मैं क्या बताऊं। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। यानी हर कोई यहाँ, हर किसी का हक बराबर है और कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि तुम्हारा हिंदुस्तान में हिस्सा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम मरकर भी इसी मिट्टी में दफन होकर ये बताते हैं कि हम इस मिट्टी से कितनी मोहब्बत करते हैं। सोचो तुम मरने के बाद कहाँ गए कोई पता नहीं है। हमारी तो खबरें मौजूद है, आप देख लीजिए आके। हमारे बावजूद हजारों साल से यहाँ मौजूद है। इस बात पर ये दलालत करता है कि हिंदुस्तान किसी का और का नहीं, बल्कि यहाँ सभी का है, सभी का यहाँ पर हिस्सा है। आप चले जाइए ख्वाजा अजमेर की दरगाह पर, अजमेर शरीफ इतनी पुरानी दरगाह, चले जाइए बड़ाई शरीफ
शरीफ कितनी पुरानी दरगाह, यानी हम यहाँ बरसों से, अगर कोई ये समझे कि ये जो है आजादी के बाद आगे भी उनकी गलत फहमी है, समझ रहे हैं? हमें सबूत देने की जरूरत नहीं है, मैं सबूत देना भी नहीं चाहता, सबूत तो तुम दो कि तुम्हारा यहाँ का तुमने क्या किया है। और आपसे मैं यही कहूंगा कि आप दीन की तालीम हासिल करें, दुनियावी तालीम हासिल करें, और जो दुनियावी चीजें होती हैं कि कैसे जिंदगी को गुजारना है, एक दूसरे के सामने कैसे पेश आना है, इसका ख्याल करें। हमेशा एक अच्छे अखलाक के साथ, अच्छे किरदार के साथ लोगों के सामने पेश आए, क्योंकि हजरत अली का कौल है कि यतीम वो नहीं होता है जिसके बाप ना हो, बल्कि यतीम वो होता है जिसके पास इल्म ना हो। आज जो इल्म से आगे हैं, इल्म से कोरे हमेशा झगड़े फितने पे लगे रहते हैं। और मैं भी कहता रहता हूँ बार बार कि जो बर्तन खाली होता बड़ी आवाज करता है, और जो बर्तन भरा होता वो खामोश रहता है। आप इस बात पर गौर कर लें कि जहां की हालत है, जहां इल्म की कमी है, वहां झगड़े फितने फसाद ज्यादा होते हैं, और जहां सिमिलर किस्म के लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, वहां बड़े शांति का माहौल, पुरसुकून माहौल होता है। इसलिए इस जिहालत से दूर होकर हमें इल्म की रोशनी में आकर ये लोगों को बताना होगा कि इल्म से कितना फायदा होता है और इल्म की अहमियत क्या होती है। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा पढ़ी थी अभी कि खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया है। एक आयत और इसी सूरह में है, इक़रा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए अपने रब के नाम से, वो तुम्हारा करम करेगा। यानी रब का ये वादा है, अगर आप पढ़ेंगे आप पर करम होगा और आप कामयाब जरूर इंशाअल्लाह होंगे। और कुरान का कोई भी फरमान झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, मुझसे सच्चा कौन है। अगर आपसे रब ने ये वादा किया है कि आप पढ़िए और मैं करम करने वाला हूं, तो इंशाअल्लाह जरूर हमें ये उम्मीद है, उम्मीद क्या बल्कि ये 100% ही गलत का वादा है तो जरूर कर्म करेंगे। बस शर्त यह है कि हमें अपने वादे पर खरा उतरना होगा, पढ़ना होगा, लिखना होगा। कलम की जो ताकत होती है बड़ी पावरफुल ताकत होती है। ये जो कलम की ताकत होती है, इल्म जो होता है हमें तमाम तरह की बुराइयों से बचाकर लाकर रोशनी में खड़ा कर देता है। तमाम तरह की परेशानियों, दिक्कतों जो हमारे जिंदगी में आती है, ये इल्म की बरकत से हमारे मसाइल आराम दूर होते हैं। इसलिए हमें दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल करें कि हिंदुस्तान का जो संविधान है उसका मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है। ये सारी चीजें हमें और आपको जाननी चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। आज कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हिंदुस्तान का जो माहौल है इसको खराब करने की कोशिश में लगे हैं। हमें मोहब्बत के साथ, इल्म के साथ, संविधान पर अमल करने के साथ इन नफरतों को मिटाना होगा और ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए कोई भी हिंदुस्तान के माहौल खराब करने की कोशिश करे, आप उसकी आवाज़ों को ना सुने बल्कि उसको इग्नोर कर दें, क्योंकि जाहिल हमेशा यही चाहता है कि फितना हो, फसाद हो। इसलिए हमें तालीम हासिल करके, संविधान को पढ़ करके हिंदुस्तान की हिफाजत भी करनी है और लोगों को अच्छा पैगाम भी देना है। बस आज अपनी बात ये खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और इस दुनिया में इज्जत व आबरू के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।